Assalamu alaikum. In today's lecture, we will be talking about Sigmund Freud, and the book that we have selected today is The Interpretation of Dreams, that is written by him. But before we move ahead, we need to understand something about Sigmund Freud and his life so that we can be able to understand the text in a better manner. So the first thing is that there are three or four people. These four people, like Sigmund Freud, then we have Charles Darwin, then Karl Marx, and then Albert Einstein. Please keep in mind that if you really want to understand the 20th century thought, whether it is a political thought or a scientific thought or any other kind of thought, we cannot be able to understand without understanding these people. So you can see very well that as far as Charles Darwin was concerned, he has you can say he actually revolutionized in the field of biology by writing the book on theory of evolution, the natural selection, and the survival of fittest. These are the different concepts that are given by him. Then we have Karl Marx, and you know very well that Karl Marx, he wrote against capitalism, and his books Das Kapital and Communist Manifesto, they are very important. And you also know very well that like later you can say thinkers like Michel Foucault, Jacques Derrida, and many of these people, they were very much influenced by the thought of Karl Marx. So Karl Marx, you can say, is very important. Then we have Albert Einstein. He has the theory of relativity, and you also know very well that theory of relativity, it also revolutionized the modern Western concept of human life. So the same is the case with Sigmund Freud. So you can say that these are the four people whose understanding is a must if you really want to understanding the modern Western conception of human life, because they, you can say, they revolutionized it, and the thought that they were leading, it was a radical thought at that time. So this is the most important thing. The second thing about Freud is psychoanalysis. So psychoanalysis was actually a method or of treatment in which the patient who were suffering from some neurological disorders, they were treated. And when we proceed to this lecture, then we will be able to explain this concept in a greater detail. Students, please keep in mind that the book that I have selected for this lecture is the Knowlton Anthology of Literary Theory and Literary Criticism. This has given a very good introduction, and this introduction is followed by the original text. So the purpose of mine is to encourage students to read the original text, because unfortunately in our colleges and in our educational institutions, students are not encouraged to read the text, but they are only encouraged to read the short summaries and this and that. So the purpose is, please keep in mind that the text has no substitute. You have to read the text. So we move on. So right now we will be talking about the life of Sigmund Freud. So Freud was born in Moravia in Czech Republic. You know, Czech Republic is a Franz Kafka was also born there, and the Freuds moved to Vienna. Vienna is the capital of Austria, and then he obtained his education, and then he started his career, and he started his career as a clinical neurologist के तौर पे उसने अपने करियर का आगाज़ किया। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बहुत अहम चीज़ है। स्टूडेंट्स ये याद रखें, जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है ये बड़ी अहम है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मैं इनकरेज करूँगा तो आप सारी की सारी को पढ़ो, लेकिन हाईलाइटेड के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। तो नाज़ी जो था ना, नाज़ी जर्मनी, यानी ये उस वक़्त के देखें, अगर हम ये बात करें तो हम किसी भी फ़िलासफ़र की, किसी भी राइटर की, किसी भी थिंकर की, किसी भी साइंटिस्ट की थाट को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि किस दौर में पैदा हुआ, उस दौर के सियासी, समाजी, इंटेलेक्चुअल वगैरह इकनॉमिक हालात क्या थे। उस वक्त तक हम देखें तो उस वक्त क्या था कि जर्मनी का जो हिटलर था, हिटलर की जो एक फ़िलासफ़ी को लेके चल रहा था ना, हिटलर का एक अपना नज़रिया था, एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी जिसे हम नाज़िज़म कहते हैं, NAZISM। नाज़िज़म का मतलब ये होता है कि रेसिस्ट किस्म की फ़िलासफ़ी है। इसका मतलब ये होता है कि जो जर्मन के जो लोग हैं वो सबसे सुपीरियर हैं, वो साल्ट ऑफ द अर्थ हैं। और याद रखें कि ये जो हिटलर था, जो नाज़िस्ट थे ना, दे वर वेरी अगेंस्ट ज्यूज़, यहूदियों के बहुत खिलाफ थे। अब देखें, मसला यहाँ ये आता है कि जो फ्रॉइड था, फ्रॉइड, पहली बात है, फ्रॉइड ऑल द वे थिस्ट था, वो खुदा का मुनकर था, मुनकर खुदा था, लेकिन वो पैदा कहाँ हुआ था? पैदा एक जूइश फैमिली में हुआ था। ठीक है, वो एक यहूदी ख़ानदान में पैदा हुआ था। तो इसके दो प्रॉब्लम थे। अब हिटलर को दोनों इश्यूज़ थे, क्योंकि हिटलर यहूदियों के पहली बात बहुत सख्त खिलाफ था, और दूसरी बात ये थी कि उसके जो आइडियाज़ थे जो इसने दिए थे
वो बड़े रेडिकल आइडियाज़ थे, जैसे कि हमने ऊपर बात की है, ठीक है, बड़े रेडिकल आइडियाज़ थे। इसलिए जो नाज़ियों ने जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कब्ज़ा किया तो मैस बर्निंग ऑफ हिज बुक्स, यानी उसकी किताबों को जो था ना 1933 के अंदर जलाया गया और पब्लिकली जलाया गया, लोगों को दिखाया गया, ठीक है, कि निशान इबरत बना दिया गया, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अब ये बात है। अब इसके बाद देखिएगा कि हमने चूँकि आज किताब का मुताला करना है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स को समझने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फ्राइड और ब्रेवर, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर किताब लिखी स्टडीज़ ऑन हिस्टीरिया। तो ये आगे हम इसको लेके चलते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं स्टडीज़ इन हिस्टीरिया, क्योंकि स्टडीज़ इन हिस्टीरिया को समझे, ये सिडक्शन थेरी होती है, ठीक है, इनको समझे बगैर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स को नहीं समझ सकेंगे। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, ये ऐसे ही होगा कि जैसे हम एक कमज़ोर बुनियादों के ऊपर एक अपना महल तमीर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं, ये देखिएगा कि टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का हमने देखना है, टेक्स्ट के जिन पोर्शन को मैंने सेलेक्ट किया है और हाईलाइट किया है उसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड you that before we move to the interpretation of dreams, we need to understand something about the studies on hysteria। अब देखिए स्टडीज़ ऑन हिस्टेरिया जो थी ये 1885 के अंदर किताब लिखी गई थी और ये फ्रॉइड और जोसेफ ब्रेवर ने दोनों ने मिल के लिखी थी, ठीक है। अब इसकी समझ बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है, इसकी समझ मैं कहूँगा कि ये नाकाबिले गुज़ीर है आपको ये किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम समझने के लिए। अब हिस्टेरिया देखिए, एक और चीज़ याद रखिए बच्चों के, देखें हर जो राइटर होता है, हर जो साइंटिस्ट होता है, हर जो फिलासफर होता है, उसका कोई ना कोई मरकज़ी नुक्ता होता है, मरकज़ी नुक्ता होता है एक जो, यानी उसका सेंट्रल पॉइंट होता है, फिर उस सेंट्रल पॉइंट के गिर्द उसके सारे थाट घूमती है। तो अगर हम फ्रॉइड की बात करें तो फ्रॉइड की जो सबसे बड़ी, यानी जो उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो सेक्स है, ठीक है, यानी सेक्स एक ऐसा लफ्ज़ है जो उसकी सारी थाट के इर्द गिर्द घूमता है, यानी इस लफ्ज़ को समझना बहुत ज़्यादा उस हवाले से ज़रूरी होगा। अब देखें कि हिस्टेरिया क्या होता है। हिस्टेरिया जैसे कि हम सब जानते हैं, हिस्टेरिया एक मेंटल डिजीज़ होती है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। लेकिन हम यहाँ समझेंगे कि फ्रॉइड उसे कैसे बयान करता है। तो फ्रॉइड कहते हैं हिस्टेरिया डराइव्स फ्रॉम अ ग्रीक रूट हिस्टेरियन मीनिंग वूम, मतलब इट इज़ अ डिजीज़ काज बाय द वांडरिंग ऑफ अ सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। अब देखें यानी ये डिजीज़ तो है, ये एक मेंटल डिजीज़ है। वी ऑल बिलीव, वी ऑल नो दिस थिंग वेरी वेल दैट हिस्टेरिया इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़, इज़ अ मेंटल डिजीज़, इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, हिस्टेरिया जो। लेकिन फ्रॉइड कहता है, फ्रॉइड क्या कहता है कि इट इज़ काज बाय द वांडरिंग ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, यानी जब सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर इंसान के जो जिनसी अज़ा के अंदर जब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा होती है, यानी उनके अंदर डिप्रेशन होती है, उनकी तस्कीन नहीं होती, तो उसकी वजह से जो बीमारी पैदा होती है उसको हम कहते हैं हिस्टेरिया। ये फ्रॉइड का कंसेप्ट है। जैसे मैंने को बोला कि इसकी सारी थाट का जो मरकज़ी नुक्ता होगा सेक्स होगा, ठीक है, कि ये कहेगा कि हमारा जो सबसे बड़ी जो ड्राइविंग फोर्स होती है इंसान की, जो क़ुव्वत मुतहरका होती है इंसान के अंदर, वो सेक्स होती है। ऐसे कार्ल मार्क्स कहेगा कि इंसान की सबसे बड़ी जो क़ुव्वत मुतहरका होती है वो इंसान का पेट होता है, पेट की जिबिलत होती है। लेकिन ये क्या करेगा, सेक्स की जिबिलत को लेके चलेगा, ठीक है। आप देखें कि इसने क्या किया कि मेंटल डिजीज़ जो थी उसका रिलेशन किसके साथ कायम किया, उसका रिलेशन उसने कायम किया सेक्सुअल डिजीज़ के साथ, यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या कर रही है वो लीड, इट इज़ एक्चुअली रिजल्टिंग इन द मेंटल डिसऑर्डर। तो अगर हम मेंटल डिसऑर्डर को सही करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि जो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है तो उसको पहले दुरुस्त किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट था ये चैलेंज किया गया। आप खुद देखें कि इसका कंसेप्ट कितना, यानी एक रेडिकल किस्म का कंसेप्ट है, ठीक है, जो फ्रॉइड का। तो ये उस वक्त के लोगों को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था, इसलिए इसकी किताबों को बड़ा बुरा समझा जाता था, इस किताबों के ऊपर बैन भी बाकायदा तौर पर लगे, ठीक है। ये सारे मामलात इसके हवाले से हुए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हिस्टेरिया के बारे में। कहते हैं इट वाज चैलेंज बाय अ फ्रेंच डॉक्टर येन मार्टिन शार्कोट, ठीक है। अब देखिए येन मार्टिन शार्कोट ये कहता है कि ये जो डिजीज़ है हिस्टेरिया की, इसका कोई भी लिंक जो होता है हमारे जिनसी अज़ा से, यानी हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से नहीं है, बल्कि इसका लिंक जो होता है हमारे ब्रेन डैमेज के साथ है, ठीक है। यानी ब्रेन के अंदर जब प्रॉब्लम होता है तो तब ये प्रॉब्लम होता है। इसका तल्लुक बिल्कुल जो होता है ना हमारे यानी सेक्सुअल ऑर्गन से नहीं है, हमारे जिनसी अज़ा से बिल्कुल इसका लिंक नहीं है, ठीक है। ये कौन कहता है, ये फ्रेंच डॉक्टर कहता है। तो फ्रॉइड ये कहता है। अब फ्रॉइड कहता है कि फ्रॉइड हिस्टेरिया इज काज बाय द डिप्रेस्ड ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड मेमोरी, ठीक है। अब फ्रॉइड का देखिए ये जो कंसेप्ट था ना, ये बड़ा एक यानी बाउंडा कंसेप्ट भी था, आप ये कह सकते हैं, और बड़ा ये उसने खुद ही बाद में इसको जो था ना फिर चेंज भी उसे करना पड़ा था, ठीक है। वो ये कहता है कि हिस्टेरिया इसलिए होता है कि हमारे अंदर जो है ना बच्चे के अंदर, ठीक है,
चाइल्डहुड के अंदर जब बच्चा जो था ना अभी लास्ट शौरी की एज में होता है, अभी शऊर की उस तरह की एज को नहीं पहुंचता, तो उसके अंदर क्या होता है, एक यानी उसके अंदर ना उसका समझे कि उसके साथ सेक्सुअली असाल्ट किया गया होता है, एक सेक्सुअल रेप किया गया होता है। सेक्सुअल रेप भी कौन करता है, देखिए कितनी अजीब और बॉन्डी बात है कि सेक्सुअल रेप भी कौन करता है, उसका पेरेंट करता है। और पेरेंट ये करता है तो चूँकि वो जब बच्चा बड़ा होता है तो वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाता, बिकॉज इट इज़ सोशली टैबूड, ठीक है ना, यानी सोशली नहीं समझी जाती दुरुस्त। तो वो क्या करता है, वो जो उसकी जो थाट होती है, उसकी जो मेमोरी, वो क्या चली जाती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि वो वहाँ से मूव करके कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चली जाती है। यानी हमारा जो जहन का जो हमारा फंक्शन, एक हमारी एट्रीब्यूट होती है, द कॉन्शियस होती है, एक अनकॉन्शियस होती है, एक सब कॉन्शियस होती है। तो यानी ये शऊर से लाशऊर में, यानी इसका मतलब होता है कि इट एक्चुअली मूव्स फ्राम द कॉन्शियस टू द अनकॉन्शियस, ठीक है, उसमें चला जाता है। तो उसकी वजह से बीमारी जो होती है वो क्या होती है, हिस्टेरिया होती है, ठीक है। तो अब वो कहता है जी एक साइको एनालिस्ट होता है, उसका काम क्या होता है कि इस हिस्टेरिया को दूर करे और उसको इस तरह दूर करे कि पहले बच्चे से यानी उसकी उस मरीज़ से उसकी कहानी सुने, उसका नैरेटिव सुने, उसकी स्टोरी सुने, और नैरेटिव स्टोरी सुनने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करे, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं जी, ये देखते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि साइको एनालिसिस के ऊपर बात हुई थी। अब साइको एनालिसिस में क्या होता है कि एक जो मरीज़ होता है वो अपना एक नैरेटिव बताता है, कहानी बताता है, एक स्टोरी बताता है, और फिर जो एक डॉक्टर होता है, जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है, जो उसका माहिर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, उसकी ताबीर करता है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों देखें, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये हो गई है कि यहाँ हमें लिटरेचर के जो तलबा व तलबात होते हैं, लिटरेचर के जो लोग होते हैं, ये उनके लिए जो था ना ये बात बड़ी रेलिवेंट माने, क्योंकि लिटरेचर में हम क्या पढ़ते हैं, हम कहानियाँ ही पढ़ते हैं, हम ड्रामास ही पढ़ते हैं, हम पोइट्री ही पढ़ते हैं, हम नैरेटिव्स को पढ़ते हैं, और नैरेटिव को पढ़ने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से इसका जो साइको एनालिसिस का लिंक होता है लिटरेचर के साथ इस्टेब्लिश हो जाता है। क्योंकि लिटरेचर क्यों इस्टेब्लिश होता है कि हम इन कहानियों को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ने के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं। अब जैसे कि यही बात है, अब देखें कि मैंने लिखा हुआ है कि लिटरेचर एंड साइको एनालिसिस के नैरेटिव एंड क्रिटिक। अब लिटरेचर क्या काम कर रहा है, नैरेटिव का काम कर रहा होता है। जैसे कि एक मरीज़ नैरेटिव बताता है आपको, नैरेटिव का काम कर रहा होता है, और एक स्टूडेंट का, एक उस्ताद का क्या काम होता है, उस नैरेटिव को क्रिटिक करना, उसका क्रिटिक बनना, ठीक है। तो यहाँ से ये भी हमें नज़र आती है। अब देखें एक और बात बच्चों बहुत अहम है कि ऊपर हमने ये बात की थी कि यानी डिप्रेस्ड ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड मेमोरी, ठीक है, वो हिस्टीरिया को जन्म देती है। अब वो कहते हैं कि देखिए अगर हिस्टीरिया यानी जो मेमोरी होती है तो मेमोरी कहाँ चली जाती है, ठीक है। इसका मतलब कि मेमोरी जो होती है वो हमारे जहन का जो पार्ट होता है जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं, दी कॉन्शियस, ये कॉन्शियस से निकल के ये अनकॉन्शियस में चली जाती है। यानी अगर रूह उर्दू में कहें तो ये शऊर से लाशऊर में चली जाती है। देखिए बच्चों ये याद रखें, जो शऊर है, लाशऊर है, तहतल शऊर है, यानी कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस है, ये इनएक्सेसिबल है, ठीक है। इनके बारे में यानी आप ये नहीं कह सकते कि यानी वाकई एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते, ठीक है, और फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं और दैट इज़ वाई दे आर वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत बड़ा मुश्किल है इनको जो था ना समझने इस हवाले से, ठीक है। तो हम इस हद तक ये कह सकते हैं कि यानी जिन बातों को द ट्रॉमेटिक मेमोरी गोज बियॉन्ड द पेल ऑफ कॉन्शियस एंड स्टोर्ड इनटू द अनकॉन्शियस। तो अब साइको एनालिस्ट जो होता है उसका काम क्या होता है, जो साइको एनालिसिस का जो माहिर होता है उसका काम ये होता है कि उसकी वो जो रिप्रेस्ड थाट्स होती हैं, रिप्रेस्ड जो मेमोरीज होती हैं, उनको यानी मूव करना अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में। देखें हमने क्या बात की है कि वो कहाँ चली जाती हैं, रिप्रेशन के ज़रिए रिप्रेस होके कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। और साइको एनालिस्ट का काम ये होता है कि यानी अनकॉन्शियस से उनको कॉन्शियस में लाना, जिसके नतीजे के तौर पे उस बीमारी का इलाज किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी, मैंने इसको बड़े सिंपल तरीके से बताया है। अच्छा देखिए बच्चों, एक सवाल पैदा होता है कि उसने जब ये बातें सारी कर ली हैं कि कॉन्शियस की भी उसने बात की है, अनकॉन्शियस की है, हिस्टीरिया की है, ठीक है, ये सारी बातें, तो उसने किताब ऑलरेडी जो लिखी है स्टडीज़ ऑन हिस्टीरिया, तो फिर उससे ये किताब जो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है, ये लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये अब क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम जो है ना यहाँ देखेंगे, इसको मैं अब इसका जवाब यूँ दूंगा, ठीक है। उसे इसलिए पढ़ी है चूँकि हिस्टीरिया के अंदर जो होता है, स्टडीज़ ऑन हिस्टीरिया के अंदर उसने अनकॉन्शियस को डिस्कस किया है। अब अनकॉन्शियस के उसी चीज़ को एक्सपेंड करके ड्रीम के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, जब पहले जो ये पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर उन्होंने फ्रॉइड स्टार्ट करता है ईडिपस के जो रेक्स ड्रामा, ईडिपस रेक्स जो सोफोक्लिस का ड्रामा है उससे लेता है, चूँकि ज़ाहिर है इसने आगे ईडिपस कम्प्लेक्स को बयान करना है,
तो ये उससे आइडिया लेता है, इसलिए मैं इसको यानी आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको लाजमी रीड कीजिएगा। इसके अंदर वही उसने चीज़ें बताई हुई हैं ईडिपस रेक्स। फिर इसके बाद देखिएगा कि इसके बाद ईडिपस रेक्स के बाद जो होता है एक ड्रामा है हैमलेट, जो शेक्सपियर का ड्रामा है, उससे डरा करता है, ठीक है, उसके ऊपर वो बात करता है। तो ये आप इसको लाजमी पढ़िएगा। हम आगे चलते हैं, हम आगे इसको देखते हैं। ये देखिएगा जी, ओके। अब उसके ये जो टर्म है ड्रीम वर्क। अब ड्रीम वर्क क्या होता है, मैं इसमें कोशिश करूँगा लेक्चर के अंदर कि जो उसकी फ्रॉइड की टर्म्स हैं उसको उसकी अपनी ज़बान में और हम अपनी सादा ज़बान के अंदर उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब अगर हमारे की कंसेप्ट कवर हो जाते हैं तो फिर हमें मुश्किल नहीं आती इसको समझने में। इसका मुश्किल यही आती है जब हम की कंसेप्ट की समझ नहीं होती, ठीक है। अब ड्रीम वर्क क्या होता है, ये देखें, उसके टेक्स्ट को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है और साथ में मैंने ड्रीम वर्क की डेफिनेशन मैंने इसको लिखी है। ड्रीम वर्क की डेफिनेशन ये करेंगे कि ड्रीम वर्क इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ वन थिंग इनटू अनदर, ठीक है। अब देखें, जब हम तर्जमा करते हैं एक ज़बान से दूसरी ज़बान में करते हैं तर्जमा, ठीक है ना, ऐसे क्या होता है कि एक ड्रीम वर्क का ट्रांसलेशन होता है, एक तर्जमा होता है वन थिंग टू अनदर, ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ होती है, अब फ्रॉइड का हाँ कंसेप्ट ये होगा फ्राम द इट इज़ अ ट्रांसलेशन फ्राम द अनकॉन्शियस इनटू द ड्रीम, यानी ये क्या होता है, इस कॉल्ड द ड्रीम वर्क। ड्रीम वर्क क्या होता है कि हम जब अनकॉन्शियस का तर्जमा करते हैं, अनकॉन्शियस को ट्रांसलेट करते हैं, किस में करते हैं, ख्वाब के अंदर, ड्रीम के अंदर जब हम उसको करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रीम वर्क कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ड्रीम वर्क, ठीक है। अब ये देखिएगा इसके अंदर उसने बताया हुआ है, वो बताता है कि एवरी अटेम्प्ट हैज़ हिदरटू बीन मेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ड्रीम्स हैज़ डेल्ट डायरेक्टली विद द मैनिफेस्ट कंटेंट as it has been as it is presented in our memory, ठीक है। all such attempts have endeavored to arrive at the interpretation of dreams from the manifest content। अब इसमें देखें कि यानी ड्रीम वर्क जो होता है इसके दो चीज़ों के साथ लिंक होता है। एक हमने देखा है उसे हम कहते हैं लेटेंट कंटेंट होता है, एक क्या होता है, मैनिफेस्ट कंटेंट होता है, ठीक है। ड्रीम वर्क जो होता है कि ड्रीम वर्क इज रिलेटेड टू टू कंसेप्ट्स, ठीक है। अब ड्रीम वर्क पहले क्या होता है, ड्रीम वर्क इज द ट्रांसलेशन ऑफ द अनकॉन्शियस इनटू द ड्रीम, ठीक है ना, ड्रीम ये कहलाता है। अब हम देखेंगे कि ड्रीम वर्क इज़ रिलेटेड टू टू थिंग्स, वो दो चीज़ें क्या होती हैं, ड्रीम लेटेंट कंटेंट होता है और उस दूसरे को कहते हैं मैनिफेस्ट कंटेंट होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे पहले। अब लेटेंट ड्रीम थाट या लेटेंट कंटेंट, देखें ये की चीज़ है, ठीक है। ड्रीम थाट भी होता है और ड्रीम जो होता है लेटेंट कंटेंट ये भी चीज़ है। इज़ द अनकॉन्शियस कंटेंट दैट रिमेन्स हिडन। अब इसे लेटेंट कंटेंट इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो अनकॉन्शियस होता है, अभी हमने अनकॉन्शियस की बात की थी कि हमारा जो माइंड होता है, एक होता है ब्रेन, एक माइंड है, ठीक है। देखिए याद रखें जो ब्रेन है वो तो फिजिकल एंटिटी है ना, हमारे सर के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसे दिमाग कहते हैं। जो माइंड होता है, माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, ठीक है। अब उसके जो यानी एट्रीब्यूट्स हैं, एक दी कॉन्शियस है, एक दी अनकॉन्शियस है, एक सब कॉन्शियस है। मैंने पहले भी बोला है कि इनएक्सेसिबल है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो ड्रीम क्या होता है, ड्रीम थाट और लेटेंट कंटेंट इज़ द अनकॉन्शियस कंटेंट दैट रिमेन्स हिडन। इसे लेटेंट इसलिए कहा जाता है चूँकि ये हिडन रहता है, ये छुपा हुआ रहता है, ये जाहिर नहीं होता, ठीक है। तो ये वो चीज़ होती है। अब आगे क्या होता है जी, आगे होता है कि ड्रीम कंटेंट क्या होता है, ठीक है। अब या मैनिफेस्ट कंटेंट क्या होता है। अब मैनिफेस्ट कंटेंट या ड्रीम कंटेंट क्या होता है कि व्हाट वी रजिस्टर एज ड्रीम, जो हम ख्वाब में देखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, मैनिफेस्ट कंटेंट होता है। जो ख्वाब के पीछे छुपा होता है वो क्या होता है, वो ड्रीम कंटेंट होता है या लेटेंट कंटेंट। अब हमें ड्रीम को भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रीम की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं इस हवाले से कि ड्रीम इज़ अ डिस्टोर्टेड वर्जन ऑफ द लेटेंट कंटेंट। अब लेटेंट कंटेंट हमने पीछे पढ़ा कि लेटेंट कंटेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस कंटेंट होता है, ठीक है। और ड्रीम क्या होता है, डिस्टोर्टेड वर्जन होता है, यानी जो थाट हमारे जहन में शऊर से लाशऊर में चली जाती है, जो ठाठ हमारे जहन में हम कहते हैं कि हमारे अंदर से, यानी इट मूव फ्राम द कॉन्शियस टू द सब कॉन्शियस, ठीक है। तो वो जब डिस्टोर्टेड वर्जन डिस्टोर्टेड फॉर्म में नज़र आती है हमें सोए हुए, तो वो हम ख्वाब होता है, ठीक है। अब आपने देखा कि ख्वाब जो होता है बिल्कुल क्लियर नहीं होता, वो डिस्टोर्टेड होता है, उसके अंदर इमेजेस जो होता है डिस्टोर्शन उनके अंदर होती है, ठीक है। वो अब क्यों होते हैं वो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं जी, ठीक है। अब आगे देखें, ये मैंने ये ग्रीन से जो हाईलाइट किया बड़ा है, मैं द ड्रीम थाट्स एंड द ड्रीम कंटेंट, यानी ड्रीम थाट क्या मैंने क्या लेटेंट कंटेंट, एंड द ड्रीम कंटेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, लेटेंट मैनिफेस्ट कंटेंट आर प्रेजेंटेड टू अस like the version of the same subject matter in two different languages, ठीक है। Or more properly, the dream content seems like a transcript of the dream thoughts
इनटू एन अदर मोड ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखिए इस डेफिनेशन को, इसको कंसेप्ट को हमने आगे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको आप यूँ देख सकते हैं कि हमने क्या देखा अभी तक हमने हिस्टीरिया के बारे में बात की है, फिर हमने बात की है कि यानी जो ड्रीम वर्क क्या होता है, ड्रीम वर्क को डिफ़ाइन किया। ड्रीम वर्क के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ड्रीम लेटेंट कंटेंट होता है, एक जो होता है हमने मैनिफेस्ट कंटेंट को देखा है, और हमने ड्रीम को भी डिफ़ाइन किया अभी तक। आगे चलते हैं, आगे इस हवाले से देखते हैं जी। ओके, आगे देखें कि आगे हम करते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ ड्रीम वर्क। ठीक है, यानी ड्रीम वर्क का मैकेनिज़्म क्या होता है, यानी ड्रीम वर्क कैसे करता है, इसका यानी इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, लेकिन हम दो चीज़ों को हम लेके चलेंगे आज। एक होता है कंडेंसेशन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे मीन्स भी होता है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो कंडेंसेशन के ऊपर होगा और डिस्प्लेसमेंट के अंदर होगा, ताकि हम इसको अच्छी तरह समझ सकें। अब देखिएगा जी, ये जो टर्म होती है कंडेंसेशन क्या चीज़ होती है। देखें, अब हम इसको समझने से पहले ही करते हैं कि वन वे इन विच द ड्रीम वर्क डिस्टोर्ट्स द लेटेंट कंटेंट इज़ बाय क्लबिंग टुगेदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल इमेज। ये देखें, बड़ी अहम ये बात है। ठीक है, कि वन ऑफ द वे, यानी देखें यानी हम जब हाफ देखते हैं, हाफ में जो हमें नज़र आता है वो होता है वो मैनिफेस्ट कंटेंट होता है, और जो उसके पीछे असल चीज़ होती है वो क्या होता है, लेटेंट कंटेंट। लेटेंट कंटेंट जो होता है हमें बिल्कुल वाज़िया नज़र नहीं आता, बल्कि डिस्टोर्टेड फॉर्म में नज़र आता है। ठीक है, अभी तक हमने जब बात की है, तो जिस तरह ये डिस्टोर्ट होता है ना, कि वन वे इन विच द ड्रीम वर्क क्या होता है, ट्रांसलेशन ऑफ द मैनिफेस्ट लेटेंट कंटेंट इनटू मैनिफेस्ट कंटेंट डिस्टोर्ट्स द लेटेंट कंटेंट। ठीक है, इज़ बाय क्लबिंग टुगेदर। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखिए, जब हम हाफ देखते हैं ना, तो हाफ के अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, डिफरेंट हमें लोग नज़र आते हैं, हमें मुख्तलिफ जगह नज़र आती है। अब उन जगहों को सारी के सारी को मर्ज करके एक इमेज बना देना जो होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि शार्ट कर देना, कंडेंस कर देना, छोटा कर देना। ठीक है, ये आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन की। कंडेंसेशन का डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, पीपल एंड प्लेस आर फ्यूज टुगेदर इनटू अ सिंगल इमेज, यानी मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ चीज़ें और मुख्तलिफ जगहें वो मिल के एक इमेज जब बना देती है, एक इमेज में मर्ज हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल मैंने लिखी है, ये अम्ब्रेला और हेड गियर। अम्ब्रेला आपको पता है छतरी को कहते हैं, और हेड गियर हम कहते हैं जो हम आमतौर पर जब हमें डिग्री मिलती है ना, तो हमने गाउन पहना, गाउन के ऊपर हमने कैप पहनी होती है, कैप जो पहनते हैं ना हास किस्म की, वो हेड गियर कहलाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मिसाल के तौर पर कि कल मैं कहता हूँ कल ना मेरा पेपर है, आई हैव टू अपीयर इन द एग्ज़ाम टुमारो, और मुझे जो था ना पेपर का काफ़ी मसला हुआ है, मेरा पेपर तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं हाफ में ये देखता हूँ कि हाफ में जो था ना, मुझे हाफ आता है कि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बारिश हो रही है, और आपको जो था ना कि अम्ब्रेला का इमेज नज़र आता है, बारिश के साथ हर अम्ब्रेला का इमेज जो होता है ना वो अटैच होता है। तो आपको ये इमेज नज़र आता है कि बारिश हो रही है, बारिश होने के साथ ये होता है कि आपने हेड गियर पहना हुआ है और आप कहीं जा रहे हो। ठीक है, आप हेड गियर पहन के, हेड गियर मैंने क्या आपको बताया कि हेड गियर वो चीज़ होती है जो आप गाउन के साथ पहनते हो जब आपको डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटीज़ में, आमतौर पर कन्वोकेशन होती हैं। ठीक है, वो उससे आप वहाँ जा रहे होते हैं। अब देखिए जो हेड गियर होता है, हेड गियर क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड गियर का जो ऊपर वाला जब हम पार्ट देखते हैं तो फ्लैटेंड पार्ट होता है, फ्लैटेंड टॉप होता है, तो एक अम्ब्रेला की तरह का होता है, हमें अम्ब्रेला की तरह नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अब इससे आपको क्या चीज़ नज़र, इससे आपको ये चीज़ नज़र आई है कि देखें, यानी इससे यानी बारिश हो रही है, बारिश होने के नतीजे में आप डर रहे हो, आपको डर इस चीज़ क्या है कि यानी अगर ऐसा होगा तो ऐसे होने के नतीजे में यानी मैं फ़ेल हो जाऊँगा कि फिर मुझे जो है ना हेड गियर वो मैं नहीं पहन सकूँगा। ठीक है, इस तरह देखें कि सादा सी बात में हम समझे कि यानी डिफरेंट इमेजेस है। ठीक है, बारिश का इमेज है, छतरी का इमेज है, गाउन है, इसके अंदर हेड गियर है, तो वो सारे के सारे मिल के क्या कर रहे हैं कि एक सिंगल इमेज पैदा। एक सिंगल इमेज क्या होता है कि आपके खौफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप जो होता है ना इसमें डर में मुब्तला हो कि अगर ऐसा मैंने पेपर कल ना दिया, अगर ऐसा ना किया तो इसकी सूरत में मैं नाकाम हो जाऊंगा, नाकाम होने की सूरत में क्या होगा कि मुझे जो हेड गियर है वो मैं नहीं पहन सकूंगा। ठीक है, इस तरीके के साथ इन्हें आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं, सादा से एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की ये कोशिश की है। ठीक है, तो वो कहते हैं, फ्रॉइड कहते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट बिकम्स क्लियर टू एनीवन हु कंपेयर्स द ड्रीम कंटेंट विद द ड्रीम थॉट। देखिए, मैंने पहले बताया ड्रीम कंटेंट और ड्रीम थॉट का मैंने बता दिया, इज़ दैट ऑफ द कंडेंसेशन ऑन अ लार्ज स्केल हैज़ बीन कैरियड आउट।
ठीक है। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि यानी डिफरेंट इमेजेस का मिलाना और उनको जो फ्यूज़ टुगेदर करना एक सिंगल रियलिटी के अंदर, एक सिंगल इमेज के अंदर। तो जब हम हाफ वगैरह देखते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा चीज़ें हमें नज़र आ के तो हमें एक इमेज के अंदर हमें नज़र आ रही होती है। तो ये होता है कंडेंसेशन। तो मैंने अभी तक क्या बताया है, अभी तक मैं साथ साथ याद रखूँगा। ड्रीम वर्क को डिफ़ाइन किया है। फिर ड्रीम वर्क के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसे हमने बोला है कि लेटेंट कंटेंट एंड मैनिफेस्ट कंटेंट, उसको डिफ़ाइन किया। फिर हमने देखा कि अब मैकेनिज़्म में हमने दो, अभी एक चीज़ पढ़ी है कंडेंसेशन, अब हम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर चलेंगे। अब देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की टर्म मुख्तलिफ यानी मानों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट्स हैव नो इंटीग्रल कनेक्शन, द पर्पस इज़ टू ऑब्सक्योर द कंटेंट। ठीक है, अब देखिए जब हम हाफ देख रहे होते हैं ना, ठीक है, तो जो हमें इतने ज़्यादा इमेजेस नज़र आ रहे होते हैं ना, ठीक है, तो बज़ाहिर जो होता है ना उनके दरमियान को कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, अब कनेक्शन नज़र क्यों नहीं आ रहा होता? ठीक है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब द पर्पज़ इज टू ऑब्सक्योर द लेटेंट कंटेंट। ठीक है, लेटेंट कंटेंट को क्या करते हैं? ऑब्सक्योर कर देते हैं। अब मैंने देखे, अब देखे लेटेंट कंटेंट क्या होता है? जो आपके अनकॉन्शियस में पड़ी हुई जो आपकी थाट्स होती हैं। ठीक है, तो फिर हम सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो हूबहू हमें हाफ में नज़र क्यों नहीं आती? ठीक है, तो इसका जवाब जो होगा आगे फ्रॉइड देगा। ठीक है, तो अब हम ये देखें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट्स हैव नो इंटीग्रल कनेक्शन। ठीक है, कोई इंटीग्रल कनेक्शन नहीं होता। अब इसमें एग्जांपल है, फ्रॉइड देता है एग्जांपल, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मिसाल के तौर पे एक मरीज़ आता है, एक पेशेंट आता है, पेशेंट आके उससे अपना इलाज करवाता है और उससे बताता है कि मैंने हाफ में देखा है कि मैं एक सफ़ेद पप्पी को, एक वाइट पप्पी को स्ट्रैंगल कर रहा हूँ, उससे मतलब जो होता है ना उसका मैं गला घोंट रहा हूँ। ठीक है, अब फ्रॉइड क्या करता है? मैंने पहले बताया कि फ्रॉइड का जो लिंक है ना सारे का सारा, यानी उसके जो ये जो सेक्स है, सेक्स के गिर्द उसकी सारी की सारी थाट घूमती है। तो फ्रॉइड उसे ये कहता है कि ऐसा हुआ होगा कि यानी उसका साइको एनालिसिस करता है, उसकी पूरी उसकी स्टोरी सुनता है, उसका पूरा नैरेटिव सुनता है। तो अब फ्रॉइड देखे उसके बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन ये निकालता है कि असल में जो होता है ना कि तुमने जो जैसे स्ट्रैंगल किया है ना, जिसका गला घोंटा है, वो असल में डॉग नहीं था। असल में डॉग जो होता है ना, वो असल में वो क्या था? वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ थी। सिस्टर इन लॉ जो थी, ठीक है, वो उससे तुम नफरत करते हो। ठीक है, अपने सिस्टर इन लॉ से। ठीक है ना, अब वो सिस्टर इन लॉ से नफरत करते हो तो चूँकि जो होता है ना कि तुम उसका डायरेक्ट गला नहीं घोंट सकते, और इसलिए क्या कि डॉग जो होता है, डॉग का पप्पी का तुमने गला घोंटा, पप्पी असल में तुम्हारे सिस्टर इन लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट हो गई ना, कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान कोई इंटीग्रल कनेक्शन नहीं है। अब देखें डॉग का और उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? तो ये इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट है कंडेंसेशन, सॉरी हमने ऊपर देखा था, इसका रिजल्ट क्या निकलता है अभी हमने बात की। तो द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन इज ओवर डिटर्मिनेशन। अब ओवर डिटर्मिनेशन क्या होता है? व्हेन अ सिंगल थिंग इज रिलेटेड टू मल्टीपल काजेज, इट इज़ ओवर डिटर्मिनेशन। देखें ना, सिंगल थिंग है मिसाल के तौर पर, ठीक है, कि आपको डर है कि आपने फेल हो जाना है। ठीक है, लेट्स सपोज तो आपको क्या बारिश भी हो रही है, छतरी भी आ रही है, रिक्शा भी लेट हो रहा है, गाड़ी वाला भी लेट हो रहा है, ठीक है, बिजली भी बंद है, कपड़े भी इस्त्री नहीं हुए, तो ये ओवर डिटर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये चीज़ें देखी। ओवर मैकेनिज्म किस में होता है? मैकेनिज्म में एक कंडेंसेशन होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये दो चीज़ें इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, यानी इसके हवाले से अगर हम बात करें तो देखें स्टूडेंट्स, अगर ये याद रखिएगा कि आगे इसकी और भी टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम माइंड की बात करते हैं, जहन की बात करते हैं, तो फ्रॉइड ये कहता है हमारा जो जहन होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। ठीक है, तीन चीज़ें जो होती हैं वो क्या क्या तीन चीज़ें होती हैं? ठीक है, देखिए जो एक होता है इड। ठीक है, अब इड के बाद आगे क्या होता है? इड के बाद होता है ईगो। ईगो होती है, ईगो के बाद सुपर ईगो होती है, सुपर ईगो। ठीक है, ये आपने बाद में ये बताता है फ्रॉइड हमें। तो अब ये क्या चीज़ होती है? इड, ईगो, सुपर ईगो। अब इड जो होता है ना, देखिए प्लेयर प्रिंसिपल होता है हमारी पर्सनैलिटी का। ये कहता है कि ये हर किस्म ये अपने फुलफिलमेंट चाहता है, यानी इड जो होता है हमारी ख्वाहिशात होती हैं, हमारा प्लेयर प्रिंसिपल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कि हमें अगर भूख लगी है ना, तो इड क्या कहेगी? हर तरीके के साथ आपको भूख मिटानी है, चोरी करके मिटाओ, जिस तरह मर्जी मिटाओ, ठीक है, आपने मिटानी है, यानी कि कोई इखलाकी प्रिंसिपल नहीं है। सुपर ईगो जो होता है ये एक इखलाकी प्रिंसिपल होता है, ये कहता है कि तुम जो होता है ना ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो कि इंसान के अंदर जो होता है ना कन्फ्लिक्ट रहते हैं, ईड और सुपर ईगो के दरमियान हमेशा कन्फ्लिक्ट रहते हैं, यानी इनका जो इंसान की आप एक तराजू की एग्जांपल लेके तराजू ले लें, तो तराजू से आप ये देख सकते हैं कि कभी जो होता है ना, कभी इंसान की पर्सनैलिटी जो होता है वो झुक जाती है, ईड उसे झुका देती है, कभी उसे सुपर ईगो झुका रही है। ठीक है, अब जो ईगो होते हैं, ईगो उसका क्या होता है कि बैलेंस फोर्स होती है, बैलेंसिंग फोर्स होती है, ये उनके दरमियान तवाज़ुन कायम करती है। तवाज़ुन कैसे पैदा करती है कि ईड ये कहेगी, जैसे मिसाल के तौर पर ईड ये कहेगी कि अगर आपको भूख लगी है तो भूख
ख़ास तरीके से आपको मिटानी है, ठीक है। कोई इसका हिलाकी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। सुपर ईगो जो है हिलाकी कंसेप्ट को लेके आएगी। अब ईगो ये कहेगी कि आपने भूख मिटानी है। अब मिसाल के तौर पे कि आप किसी दुकान के सामने से गुजर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपको भूख लगी है। ईड कहेगी कि जिस तरह मर्जी अपनी भूख मिटाओ। ईगो कहे सुपर ईगो कहेगी नहीं, तुम इस तरह नहीं कर सकते। ईगो ये कहेगी कि तुम दरमियान का रास्ता अपना लो, कि भूख मिटानी भी है तो आप दुकानदार से पूछ सकते हो, आप उसे बोल सकते हो कि मैं आपको बाद में पैसे पे करूँगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। इसके अलावा एक और बच्चों कंसेप्ट होता है, इसको हम कहते हैं क्योंकि ड्रीम के साथ ये रिलेट करते हैं, उसे कहते हैं फ्रॉइडियन स्लीप। FREUDIAN फ्रॉइडियन स्लीप। फ्रॉइडियन स्लीप जो होता है ना, ये भी ड्रीम के साथ काफ़ी लिंक करता है। फ्रॉडियन स्लीप और ड्रीम का ये लिंक होता है कि देखिए ऐसी बातें, ऐसी थाट्स जो कि हम सोसाइटी के डर से, मुआशरे के डर से कह नहीं पाते, ठीक है, वो थाट्स हमारे लाशऊर में चली जाती, अनकॉन्शियस में रिप्रेस हो जाती हैं। अब रिप्रेस होने के बाद क्या होता है कि बाज़ का गैर इरादी तौर पे वो लफ्ज़ हमारे मुंह से निकल जाता है, यानी या वो ड्रीम की सूरत में हमारे सामने नज़र आएगा, तो या हमारे सामने इस तरीके के साथ नज़र आएंगी चीज़ें। तो ये चीज़ इस लिहाज से बहुत अहम है। अब देखिए, अब हम अगर इसको शुरू में जाते हैं तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो राइटर्स थे, यानी फ्रॉइड है, डार्विन है, कार्ल मार्क्स है, तो इनके डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट ने डिफरेंट वोकेबलरी, क्रिटिकल वोकेबलरी को भी जन्म दिया, ठीक है। जैसे देखा फ्रॉइड के यहाँ कितने कंसेप्ट हैं, डिफरेंट क्रिटिकल किस्म की वोकेबलरी इसने इस्तेमाल किया, ऐसे कार्ल मार्क्स भी करता है, ऐसे दूसरे राइटर भी करते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि इसकी जो चीज़ा जो मेन पॉइंट है उसको समझा देना। तो बाकी मैं स्टूडेंट्स आपको ये लाजमी एंड पे कहूँगा कि जो मेरा ये लेक्चर है टेक्स्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप टेक्स्ट को लाजमी इसका मुतालिया कीजिए ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी हो सके। थैंक यू सो मच।